ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा सतः सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं त्रावीमिषस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजभक्त्रं प्राणानायम्यनाथापुटिनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं केशम। अपन 2 हफ्ता बाद मिल रहे हैं। आप सब लोगों को नए वर्ष की गुर्जर नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सब वैष्णव को आशीर्वाद है। तो अपन कहाँ पे थे, आप सब लोगों को ध्यान में हो गई कि अपन अब तक कहाँ तक पहुंच चुके हैं निरोध लक्षण की अध्ययन में। कोई मेरे को बताएंगे कि अपन कहाँ पहुंचे हैं? चैट में बताओ कि अपन ने कहाँ लास्ट अपन ने छोड़े हो, तो कौन सी श्लोक में? दो हफ्ता हो गए ना, या तो थोड़ा विस्मृति हो गई होगी, या तो मैं आप लोगों को जगावे के लिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो कोई अध्ययन करता मेरे को बतावे कि अपन कौन से श्लोक में आते। बहुत समय लग रहा है, क्या बात है? याद नहीं आया अपन कौन सा ग्रंथ कर रहे हैं? ये तो याद है ना, निरोध लक्षण कर रहे हैं। अब तो बताओ। देखो, जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। बताओ मेरे को कि अपन कौन से श्लोक पे विराम लियो थे अपन ने? कृपानंद सदुर्लभ। हाँ, सर्वानंदमयश्चापि कृपानंद सुदुर्लभ। हाँ, श्लोक संख्या 8। बहुत बढ़िया। चलो, कोई तो जाग रहे हैं। चलो, मजा का फाइट। अच्छा, अभी तक में अपन को जो भी हो गया है वह विषय में आप लोगों की पहले शंका देख लें, ताकि अपने को आगे बढ़ने में फिर कोई व्यवधान नहीं आवे। क्योंकि अगर शंका रह गई है तो आगे अगर अपन ऐसे ही बढ़ जाएंगे और अंत में शंका लेने की सोचेंगे तो फिर और नई शंकाएं भी आगे आ जाएंगी। या तो अपन पहले पुरानी शंका को निवारण कर लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न अगर कोई है तो आप लोग मेरे से पूछो, और समय मत लगाइए ज्यादा, तुरंत पूछो। अपन की कक्षा अपनी आगे चलनी चाहिए। हाँ आशीर्वाद बोलो। ધ્યાન નથી રહેતું, જે કોન્સન્ટ્રેશન રહેવું જોઈએ એ નથી રહેતું. કોન્સન્ટ્રેશન જે રહેવું જોઈએ એ નથી રહેતું. એક મને બતાવો કે બહુ ક્લિષ્ટ લાગે છે. ક્લિષ્ટ લાગે છે ને? ઓફકોર્સ આ ક્લિષ્ટ છે જ ભાઈ. આ ગ્રંથ જેવો છે, થોડોક એડવાન્સ સ્ટેજનો છે, એટલે એને સમજવાને માટે સૌથી પહેલા આપણું ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન આની ઉપર જોઈએ. જો આપણે છે ને અહીંયા ઓનલાઈન કરી રહ્યા છે એ એક આપણું ડ્રોબેક છે. ઓફકોર્સ આના એડવાન્ટેજીસ ઘણા બધા છે, પણ મેઇનલી આપણે જ્યારે ડ્રોબેક શું છે એ હું તમને બતાવું કે જેમ તમે હવે જે લોકોના છોકરાઓ હવે સ્કૂલમાં ભણતા હશે
એ લોકોને આ વસ્તુનો એક્સપિરિયન્સ હશે જ કે પેલા છોકરાઓ જે સ્કૂલમાં જઈને ભણતા હતા એમાં અને ઘરમાં ઓનલાઈન ભણવામાં શું ફરક છે, કે શું અડચણ આવે છે અને કેટલું અંતર થઈ જાય છે. કારણ કે સ્કૂલમાં બીજું બધું ભૂલીને તમે ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન ક્લાસમાં હોય છે. એવી રીતે અહીંયા આપણે અધ્યયન કરવા બેઠા છીએ તો હવે ઓનલાઈન છે, પર્સન ટુ પર્સન તો છે નહીં, તો સામે બેસીને જ્યારે આપણા હાવભાવની સાથે તમે સામે બેસીને સાંભળો તો તમને, અને બીજું બધું તમારે જે લૌકિકનું છે એ બધું તમે શટ આઉટ કરીને પછી તમે આવો છો અહીંયા. પણ ઘરમાં તમે જ્યારે કરી રહ્યા છો, ઓનલાઈન ચાલુ છે, તો એમાં ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઘરમાં બીજા કોઈ આવેલા હોય બહારથી, કે કોઈ મળવા આવેલા, કે ઘરની બધી રોજની વાતો ચાલતી હોય, કરતી હોય, એટલે બીજું બધું પણ એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હોય. હવે સ્ક્રીનની સામે બીજું કંઈ દેખાતું ના હોય, પણ સ્ક્રીનની પાછળ ઘણું બધી એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હોય, તો એમાં તમારું ધ્યાન જાય. એટલે એ બધું કરવામાં આપણું જે આ કોન્સન્ટ્રેશન લૂઝ થાય છે, અને એ કોન્સન્ટ્રેશન લૂઝ થાય છે એના કારણે ગ્રંથ આપણને સમજમાં નથી આવતો અને ક્લિષ્ટ થઈ રહ્યું છે. હું જોઈ રહ્યો છું ધ વે સ્ટુડન્ટ્સની ઉપસ્થિતિ હું જોઈ શકું છું. જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા અપ ટુ સમજો 60 જેવા સ્ટુડન્ટ હતા, પણ હવે ઘટીને 19 રહી ગયા છે આજે. એટલે ઇટ ગોઝ ટુ શો દેટ આપણું આ જરૂર થઈ રહ્યું છે. કારણ કે જે મેં કીધું ને કે ઘણી બધી એટલે ડિસ્ટ્રેક્શન ઘરમાં ઘણા હોય છે. એટલે ટ્રાય કે તમે એકલા હો, એક રૂમમાં બેસીને તમે કરી રહ્યા છો, બધાની વચ્ચે બેસીને તો નહીં જ કરો. અધ્યયન કરવા બેઠા હો ત્યારે બીજી કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન તમને ડિસ્ટ્રેક્ટ ન કરે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખો. એકલા રૂમમાં બેસો અને ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન ઓન વોટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ. હું તમને જે બતાવી રહ્યો છું એ તમે સાંભળો, અને જે રેફરન્સીસ હું તમને બતાવી રહ્યો છું એ રેફર કરો. હું બધા ઉદાહરણ ક્યાંના છે એ બધું હું તમને નોટ ડાઉન કરાવું છું, તો એ તમે બધા રેફર કરો, રિવ્યુ કરો, તરત રિવ્યુ કરો અને પોતાના હાથેથી લખો. આ બધું કરશો તો તમારું કોન્સન્ટ્રેશન બનશે અને તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકશો અને તમને સમજમાં પણ આવશે. અને બીજી વસ્તુ, હું તમને સાથે સાથે નોટ્સ પણ પ્રાતસ્મરણમાં આપી રહ્યો છું. તો કેવલ તમે નોટ્સ વાંચશો તો પણ સમજમાં નહીં આવશે, અને કેવલ તમે કક્ષા અધ્યયન અટેન્ડ કરશો તો પણ તમને સમજમાં નહીં આવશે. બંનેનું કોમ્બિનેશન જોઈએ તો જ તમને સમજમાં સરખી રીતે આવશે. આ ગ્રંથ એ આમ હાલતા ચાલતા આપણે વાતો કરતા કરતા અને બીજું કંઈ કામ ઘરનું કામ કરતા કરતા કરી લઈએ એવું નથી. આના માટે તમને કોન્સન્ટ્રેશન જોઈશે જ અને ટોટલ ડેડિકેશન જોઈશે. તમારું ડેડિકેશન ઓછું પડ્યું તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું પડવાનું છે. એટલે બી ડેડિકેટેડ અને ટોટલ ડેડિકેશન. આટલો સમય જેટલો આપણે અધ્યયનમાં આપી રહ્યા છીએ હમણાં 9:30 થી 10:30 સુધી સમજો, અથવા જે પણ તમારે લોકલ ટાઈમ હોય એ, તો એ ટાઈમમાં તમે ટોટલ આને જ ડેડિકેટ કરો, બીજું કંઈ કરો નહીં. તો જ તમને સમજમાં આવશે અને તો જ તમે આગળ વધી શકશો. આમાં ઉદાહરણ એવા આપેલા છે, ઉપનિષદોના પણ છે, અને ઉપનિષદોને સમજવું આ કંઈ સહેલી વસ્તુ નથી. તો એના માટે ડેડિકેશન ટાઈમનું જોઈએ. તમારા તરફથી એટલું તો મને કોઓપરેશન જોઈશે તો જ તમે કરી શકશો. નહીં તો હમણાં 19 થી હવે ઘટીને 9 પણ થઈ જવાના છે જ્યાં સુધી આ પૂરું થશે ત્યાં સુધી. એટલે બસ એ જ છે કે તમે ડેડિકેશન ટાઈમનું આપો. હા, બીજું કઈ? બીજા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો. हाँ, ये क्या कह रहे हैं निकुंज भाई? સંસ્કૃતમાંના વાક્યો અને શબ્દો નથી સમજાતા. હા, તો હું એને કરી રહ્યો છું ને, એના તમારા માટે હું એને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને અને ટ્રાન્સલેટ કરીને જ આપું છું. પણ સાથે સાથે હું વાંચતો જાઉં છું. એના માટે તો હું સંસ્કૃતના જ વાક્યો વાંચીશ, પણ એનું હું ટ્રાન્સલેશન તમને બતાવી જ રહ્યો છું. એટલે ઇટ શુડ નોટ બી અ પ્રોબ્લેમ. અને ટ્રાન્સલેશન સાથે સાથે તમને આપેલું પણ છે. જો હું જે નોટ્સ મોકલાવું છું એમાં હિન્દી અને પ્લસ ઇંગ્લિશ પણ હોય છે, તો રેફર ધેમ.
રેફર કરશો તો તમને સમજમાં આવશે. સંસ્કૃતના વાક્ય તો ક્યાંથી સમજવા આવે? એના માટે તો એક જ ઉપાય છે કે તમે સંસ્કૃત સમજો, સંસ્કૃત શીખો, તો તમને સમજવા આવશે. બાકી હું ટ્રાન્સલેશન તો આપી જ રહ્યો છું. ઇટ શુડ નોટ બી અ પ્રોબ્લેમ. તો પણ તમને જે વસ્તુ ન સમજમાં આવે, અમુક શબ્દો સમજમાં ના આવતા હોય તો બી ફ્રી ટુ આસ્ક. જેટલા તમે પૂછશો ને એટલા તમે, ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે પૂછતા ન પંડિત થાય. તો તમારે પંડિત થવું છે તો પૂછો. યા રાજુભાઈ, બીજું કઈ પૂછી રહ્યા હતા તમે? હા જે એટલે કેટલીક વખત એવું થાય છે કે આપણે હરાઈચરણની જે આજ્ઞા છે ને કે સબોધિનીજીના ફક્ત દર્શન કરીએ તો પણ આપણને ઘણું છે, તો એવું મનમાં ન આવી જવું જોઈએ. એ મારા મનમાં આવે છે ઘણી વખત. હા, ઓફકોર્સ. હરિરાયજી નચ દ્રષ્ટા સુબોધિની, એટલે ખાલી દર્શન કરી લીધા એટલે પણ બસ છે. એ શબ્દોને તમે એકદમ શબ્દશઃ નહીં પકડો. દ્રષ્ટાનો અર્થ છે કે તમે જુઓ, એની સાથે સાથે એને સમજો પણ ખરા. દ્રષ્ટા અહીંયા કેવલ આંખથી જોવાની ઉપર જ નથી, પણ એ મનથી એના દર્શન કરો, સમજો એને. અને એના માટે કોન્સન્ટ્રેશન તો જોઈશે જ, તમારું ડેડિકેશન જોઈશે. હું કોન્સન્ટ્રેશન તમને નથી શીખવાડી શકતો. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સિમ્પ્લિફાય ધીસ ગ્રંથ એઝ easy as possible for you, but you will have to be attentive અને કન્સિસ્ટન્ટ તમારી હોવી જોઈએ. અટેન્ડન્સ ક્લાસમાં કન્સિસ્ટન્સી નહીં રહેશે તો નહીં સમજમાં આવવાનું. એટલે બી કન્સિસ્ટન્ટ. ક્લિયર થઈ ગયો છે આપની કૃપાથી. ચાલો, સારું. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આગળ વધવાની પહેલા આપણે એકવાર પાછળ સિંહાવલોકન પણ કરવું પડશે, કારણ કે 2 વીકનું ગેપ થઈ ગયો છે. એટલે લેટ્સ એ કરીએ. આપણે પેલા પાછળ આપણે જોઈ લઈએ કે છેલ્લો જે હતો એમાં શું હતું છેલ્લા ક્લાસમાં. शेयर करूँ. हाँ, तो अपन है, देखो यहाँ पे सर्वानंदमयस्यापि कृपानंदस्तु दुर्लभः विद्गत स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जनान्. यहाँ पे या कि उत्थानिका में कही थी कि ननु किमिति कृपापेक्षया गुणगानेन क्लेश संपादनीय. भाई, कृपा की अपेक्षा के लिए गुणगान के द्वारा क्लेश को संपादन क्यों करो? मतलब क्लेश सहित क्यों गुणगान करना? बाकी बदले ज्ञान निष्ठ में रह के ब्रह्मनिष्ठता ही संपादन कर लें तो क्या, मतलब ब्रह्म में ही स्थित रहें, ज्ञान को मार्ग क्यों नहीं अपनावें अपन? गुणगान में कितनो कष्ट उठाना पड़े है, तो वो क्यों करें अपन, और ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं थे अपन? तो वाको उत्तर दे रहे हैं या श्लोक के अंदर कि भाई सर्वानंदमय से, ऑफकोर्स ज्ञान अपन को ब्रह्मानंद तक पहुंचाएगा. कृपा सर्वानंदमय है, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वानंदमय है, तो वहां तक तो अपन को ज्ञान अवश्य पहुंचा देगा. परंतु यहाँ पे बात हो रही है कृपानंद की. सर्वानंदमय कृपानंद सुदुर्लभ. सर्वानंदमय होते हुए भी वह पर ब्रह्म को कृपानंद रूपी जो फल है ना, वो अत्यंत दुर्लभ है. और वो कैसे प्राप्त हुए है वाकई, और वामे का हुए है कृपानंद में, वो बता रहे हैं अगली पंक्ति में कि हृदगत स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जना. यानी अपने हृदय में रहे हुए, यानी भक्त के हृदय में रहे हुए जो भगवत गुणन को जो वर्णन है, वो जब भगवान स्वयं सुने हैं तो वो सुन के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए हैं कि वो जो गुणगान करने वाले भक्त हैं उनको अपने कृपानंद में पूरी तरह से डुबो देने हैं, उनको परिपूर्ण कर देने हैं.
जैसे कि गोपी जनन के संग में भयो, मैंने आप लोगों को वेणु गीत को प्रसंग बताया है, तो कि वेणु गीत में ठाकुर जी को ऐसे हमें बताया है कि ठाकुर जी को वृंदावन में प्रवेश हो रहे और गोपी जन उनके दर्शन करके और उनको वहां को ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन करने को उद्यत भई, पर वो कर नहीं सकी, क्योंकि जैसे ही वर्णन करवे गई तो ठाकुर जी के स्वरूप को जो आविर्भाव, मतलब ठाकुर जी के स्वरूप को जब ध्यान आयो तो वहां में इतनी भाव विभोर हो गई कि उनके मुख से शब्द निकल नहीं पाए। तो तब ठाकुर जी ने पुनः वेणु को पूजन कियो और वह वेणु पूजन के द्वारा ठाकुर जी ने अपनो भावात्मक स्वरूप वह वेणु के रंध्रन में पधरायो और वो गोपी जनन के कर्ण तक पहुंचो। वो कर्ण तक पहुंच के हृदय में उतरो, तब ठाकुर जी भावात्मक रूप से गोपी जनन के हृदय में प्रकट भय और तब फिर उनके मुख से ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन करते भय श्रुति उनके मुख से निकली, जो कि वेणु गीत अपन जाने अक्षण वताम फलम इदम न परम विदाम के उन्हें जो। तो ये एक वो उदाहरण है कि जामे ये कृपानंद है। ये जो ठाकुर जी ने वेणु के रंध्र द्वारा जो ठाकुर जी ने अपना भावात्मक स्वरूप गोपी जनम के हृदय में पधरायो, ये जो ठाकुर जी की कृपा है, हाँ, ये जो ठाकुर जी की कृति है, ये कृपा है। यहाँ के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति गोपी जनन को भई है, वो वहां पे देखो, वो जो ठाकुर जी ने वेणुनाद किया है वो सुनो सबने, यह नहीं है कि खाली गोपी जनन नहीं सुनो, संपूर्ण व्रज के जीवन ने सुनो है, परंतु जो अनुभव गोपी जनन को भयो है वो अनुभव सबको नहीं भयो। क्यों? वेणु गीत गोपी जनन ने ही गाया है और कोई ने नहीं। तो वो जो कृपा रूपी कृपानंद है वो गोपी जनन को प्राप्त भयो, अन्य कोई को नहीं। ये यकी सुदुर्लभता है, सुतराम दुर्लभ, यानी दुर्लभ अपने आप में ही दुर्लभ, यानी मतलब कितनो रेयर है ये मालूम पड़े है। तो दुर्लभता यानी कि वैसे ही रेयर है और वहां में भी सु उपसर्ग लगा के बताया है, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। कृपा रूपी आनंद को प्राप्त करनो वो तो सबसे ज्यादा रेयर वस्तु है। यासु क्यों कह रहे हैं कि और वो कार्य जो है, वो जो आनंद है वो केवल भक्ति में ही प्राप्त होगा, ज्ञान में वो प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान की समाप्ति तो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म पे हो जाए कि वो आनंदमय है, ये ज्ञान हो जानो। और ज्ञान होना एक वस्तु है और वाको अनुभव होना दूसरी वस्तु है। जैसे शक्कर मीठो है, मीठी हो है, ये बात आपने को ज्ञान भाई, कोई ने पूछी कि शक्कर कैसी हो, तो शक्कर मीठी होवे, ये आपने को ज्ञान भाई। पर वो मीठी होवे केवे सो मुंह में स्वाद तो नहीं आ जाएगा शक्कर को। वो शक्कर मुंह में रखेंगे तब वाकई मिठास को अनुभव होगा, तब जाके अपने को पता चलेगी कि शक्कर की मिठास क्या हो गए। तो ऐसे ही ठाकुर जी आनंदमय, ब्रह्म को स्वरूप आनंदमय है, ये बात को ज्ञान होना एक वस्तु है और वह को अनुभव होना दूसरी वस्तु है। वो अनुभव ही कृपानंद। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि कृपानंद अति दुर्लभ है। वो यह कह रहे हैं कि यत्र एतादृग अनुग्रह तत्र एतद अधिकारित्वात्, यहाँ जिनके ऊपर ऐसा प्रकार को विशेष अनुग्रह है वो ही या कृपानंद के अधिकारी हैं। तद आनंद प्राप्ति तद अभिसंधाय उत्तम कृपानंद सुदुर्लभ। जिनके ऊपर ऐसी विशेष कृपा है उनको ही ये आनंद प्राप्ति को अधिकार है। यासु कह रहे हैं कि कृपानंद सुदुर्लभ है। अब ये दूसरो एक और कृपानंद को आपको अगर जानना है तो दूसरा पंचाध्यायी में ठाकुर जी ने वेणुनाथ पुनः कियो थो, वो भी सबने सुने, पर केवल मतलब वो सबने नहीं सुने, पर जिन गोपी ने सुनो वो गोपियां भी सबके सब नहीं पहुंच पाई तो कुछ ही अमुक को प्रतिबंध ने रोक लियो, वो नहीं जा पाई। अमुक को रोकवे सु उन लोग उनको उन गोपी जनन को इतना ताप भयो कि उनने अपने गुणमय देह को त्याग कर दियो।
और वो वहां पहुंच नहीं पाई, पर गुणमय देह को उनने त्याग किया। और जो वहां पहुंच पाई उनको भी पहले तो ठाकुर जी ने कर दियो, कह दियो कि अब तुम यहाँ से जाओ, क्यों आए हो, क्यों वापिस जाओ, यूं करके पहले तो ठाकुर जी ने ये आज्ञा कर दी। फिर उनकी बात नहीं मान के गोपी जनन ने सामने विनती करी कि आप ऐसे मत करो। फिर ठाकुर जी ने उनके संग रात कियो, और रात में भी मान हो गए हो तो फिर वापिस अंतर्धान हो गए। और वाके बाद जब ठाकुर जी के मतलब अंतर्धान होवे के बाद जब गोपी जनन को भान भयो अपने, वो भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, और फिर जब उनको अपने दोष को भान भयो तब वो दोष को दूर करने के लिए उनने स्तुति करी। और वह स्तुति के बाद भी केवल स्तुति से ठाकुर जी प्रकट नहीं हो गए, पर वहां के बाद भी उनमें दीनता को जब आविर्भाव भयो और वो निस्साधनता को आविर्भाव भयो, वो भाव आयो, तब जाके प्रभु वहां प्रकट भय है। तो ये भी सुदुर्लभता ही बता रहे हो। तो वो ही सुदुर्लभता की यहाँ बात कर रहे हैं कि कृपानंद सुदुर्लभ है। और वहां पे भी देखो रास पंचाध्याय में भी वेणु गीत, गोपी गीत के बाद वहां पे भी यही बात आती कि हृदगता स्वगुणान श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जनन। वहां पे भी अपने गुणन को गान ठाकुर जी ने सुनियो गोपी जनन के मुख सु, तब उनको फिर महाराज को दान कियो, तो वो पूर्ण प्लावयते जनन वाली बात हो गई। तो वो ही यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्काल के इति आकांक्षाएं तन्निरूपकम तत्कार्य हृदगत हो। कैसे मतलब दुर्लभता को निरूपण है, पर कैसे दुर्लभ है ये आकांक्षा हो, तो आपको कार्य बता रहे हैं कि हृदगत स्वरूपांत, तो मतलब या प्रकार को हृदय प्रविष्ट जो कृपानंद हो वो स्वरूपात्मक स्वरूप अपने गुणन को सुन के पूर्ण प्रतिक्षण प्रवर्धमान रसपूर्ण रूप, यानी को रस को पूर्ण मानो को दाढ़ आ गई हो, ऐसे रसपूर्ण वहां पे ऐसे अपने जो जीवन को ठाकुर जी कर दे रहे हैं। तो ऐसे स्व प्लावयते स्व आविर्भाव इतर सिंधौ निमज्जयति इत्यर्थ। यानी अतः एवं बरहा पीड़म के वही बरहा पीड़म वाली बात आई कि स्वामिनी जी के हृदय में वेणु पूरी तो सुधा द्वारा भावात्मक प्रभु अंत प्रविष्ट हुए, तब जाके उनके मुक्सु अक्षणवताम इत्यादि तद्वर्णित गुण श्रवण जब कियो, तो वो देहेंद्रिय प्राण अंतकरण इत्यादि को उनको ठाकुर जी ने वो जो है वो पूर्ण रसमय बनायो, क्रीड़ामयता सिद्ध कराई, तब जाके उनके मुख से ये गान निकलो। और वही बात युगल गीत के प्रारंभ में भी आचार्य चरण ने कारिका में कही है कि अंत प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयो पुनर्निवेश्यते सम्यक सदा भवति सुस्थिर। ठाकुर जी अंत प्रविष्ट भगवान जब मुखसु निकल के, भगवान अंतर भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो चुके हैं, फिर जब वो मुख सु बाहर निकले गुणगान के रूप सु, तो फिर अब वो गुणगान पुनः उनके कर्ण में प्रवेश करे है। जब अपन जो भी बात बोले हैं वो अपने को भी सुनाई दे रही है ना, तो वह न्यायसु जो मुखसु ठाकुर जी को गुणगान अपने निकल रहे है वो अपने कर्ण में भी पहुंच रहे है, और वो अपने कर्ण सु जब वापिस भीतर हृदय तक वहां पहुंचे हैं वो, तो वहां पे सुस्थिर हो गए हैं, तब जाके वापिस स्थिति बने हैं, स्थिर बने हैं। यासु केवल श्रवण ही नहीं है पर साथ में गान भी है, यानी गुणन को केवल श्रवण ही नहीं करना है परंतु गुणन को गान भी करना है। तो वो गान श्रवण तो हृदय में पहुंचनो, फिर मुख से निकलनो, और फिर वापिस कर्णेंद्रिय द्वारा हृदय में दोबारा पहुंचना। तो ये 2 बार उनकी वाकई एंट्री होनी चाहिए गुणन की अपने कर्ण में, तब जाके वो हृदय में पहुंच के सुस्थिर होगा। तो ये कृपानंद को ये एक का कहें लौकिक साधारण आजकल की चालू भाषा में जैसे ये फंडा है,
कृपानंद को कि ये ऐसो है। हालांकि मेरे को ये सब चीजन में चालू भाषाएं वापरना पसंद नहीं है, पर अब आप लोग चाह रहे हो कि मैं को सब इजी में इजी बनाऊं, तो फिर इजी में इजी बनाने के लिए मुझको ऐसे सब शब्द को तो वापर करना पड़ेगा। या तो या प्रकार से ये 8वें श्लोक में या प्रकार की बात आचार्य चरण ने कही है कि वो जो सर्वानंदमय मतलब ज्ञान में भी, क्योंकि को तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ज्ञान से जो आनंद की प्राप्ति हो वास्तु भी अधिक आनंद भक्ति में ही मिल सके है, जो कि कृपानंद है वो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सके है। तो एवं सोपपत्तिकम गुणगान कर्तव्यता अभिधाय उपसंहरन्ति तस्मादिति। अब ये पूरी गुणगान करना चाहिए या बात को उपसंहार कर रहे हैं सोपपत्तिक बता के। सोप उपपत्ति सहित, यानी उपपत्ति सहित यानी कि युक्ति सहित बता रहे हैं। यानी ऊपर जो बात कही कि क्यों गुणगान क्यों करना चाहिए, सर्वानंदमय कृपानंद सुदुर्लभ है, क्योंकि कृपानंद सुदुर्लभ है, यासु गुणगान करना चाहिए ताकि वो गुणगान को सुन के प्रभु अपने भक्त को पूर्ण रूप से प्लावित कर दे। ये वाकई उपपत्ति है। क्यों करना ये, ताकि रीजनिंग सहित बताया। तो उपपत्ति यानी रीजनिंग, तो रीजनिंग सहित ये बात यहाँ पे कही है कि गुणगान करना चाहिए। अब या को उपसंहार कर रहे हैं तस्माद इन शब्दन के द्वारा, जो कि 9वें श्लोक में है। तो 9वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैहि सर्वदा गुण सदानंद परेर्गेया सच्चिदानंदता ततः। तस्मात् इस कारण से, तस्मात् मतलब उस कारण से, जिस कारण से कि भगवान को कृपानंद सुदुर्लभ है, उस कारण से सर्वम परित्यज्य निरुद्धैहि सर्वदा गुण, मतलब जो निरुद्ध हैं उनको सब चीज को त्याग कर देने से, भगवान द्वारा जिनको निरोध हो कर दिया गया है उनको सब चीज को त्याग कर देना चाहिए। सर्वम परित्यज्य, सर्वम त्यज्य ही नहीं कहिए, परित्यज्य, परितः त्याग करना है, मतलब सर्वथा रूप से त्याग करना है, वाचिक कायिक और मानसिक, इन तीनों रूप से सब कुछ त्याग के सर्वदा गुणा सदानंद परेर गया, सर्वदा यानी हर समय सदानंद पर गुण को गान कियो जानो चाहिए। गुणा सदानंद पर ही गया, जो सदानंद पर हैं, जिनको जो भगवत पर हैं उनको क्या करना चाहिए, सदा गुणगान करना चाहिए, सर्वदा गुण को गान करना चाहिए। वासु क्या होगा, सच्चिदानंदता ततः, इससे सच्चिदानंदता प्राप्त होगी। सच्चिदानंद कौन है, कृष्ण है, यानी कृष्णता यानी कि ब्रह्मता यानी कि शुद्धता की प्राप्ति होगी। ब्रह्म को लक्षण क्या है, सबसे बड़ा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तो वो निर्दोषता और समता प्राप्त होगी और तब जाके सच्चिदानंदता, सच्चित और आनंदता, सत और ये दोनों तो हैं ही जीव के भीतर में प्रकट रूप से, पर फिर वो आनंद भी प्रकट हो जाएगा। जब ये कृपानंद प्राप्त होगा तब जो हृदगत जो आनंद है, जो कि अब तक तिरोहित है, वो तिरोहित आनंद प्रकट हो जाएगा, तब सच्चिदानंदता आ जाएगी। अब देखें अपन के विवेचन में क्या क्या कर रहे हैं, यानी कि यस्माद् हेतोः कर्म ज्ञान उपासना मार्गेभ्यो भक्ति मार्गे निरतिशयित निज विषयो ये तिहासक्त मनसः यदक्षरं वेद विदो वरन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा पूजादीना ब्रह्म लोकम इत्यादि वाक्ये तस्माद् हेतोः सर्वं कर्म ज्ञानोपासनादिकं परित्यज्य सवासनं त्यक्त्वा निरुद्धैर्भगवता स्वेन वृत्तैः अतएव किंचित विस्तृत प्रपंच ही हुई। बहुत लंबा वाक्य है, पहले मैं अपन या ये समझे अपन के ज्ञान
कर्म ज्ञान और उपासना ये 3 मार्ग बताए हैं भक्ति के अतिरिक्त। भक्ति मार्ग तो अपने आप में है ही, पर साथ में भगवत प्राप्ति के ये कर्म ज्ञान और उपासना मार्ग भी हैं। पर उनकी क्या क्या कमियां हैं वो अपन को यहाँ में बता रहे हैं उदाहरण के द्वारा। यहाँ सबसे पहले उदाहरण दियो है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के 32वें अध्याय में। वहां पे ये श्लोक है, ये तु इहासक्त मनसः। अब वो अपन देखें कि क्या है। हाँ, ये देखो यहाँ पे देखो आज्ञा कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 14 श्लोक के बाद में यहाँ देखो, ऐश्वर्यम पारमेष्ठ्यम च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्य पुनरायांति गुणव्यति करे सती ये तु इहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णशः। ये 16वां श्लोक है कि जो यहाँ पे ये जो है ये श्लोक ये कर्म मार्ग को बता रहे हैं कि कर्म मार्ग में क्या हो रहा है कि ये तू यह आसक्त मनसः, यह यानी कि भूतल पृथ्वी में आसक्त मन है जिनको, यानी कि संसार में आसक्त जिनको मन है, वो कर्मसु श्रद्धयान्विता, और जिनकी कर्म में श्रद्धा है कि कर्म करवेसु फल की प्राप्ति होवे है। कर्म करवेसु यानी कि यज्ञादि कर्म जो वेद के अंदर बताए गए हैं, धार्मिक जो भी कर्म करने चाहिए वो सब पूरे श्रद्धा के साथ में वो करे हैं कि वह में हर एक कर्म के फल बताए हैं कि ये फलाना कर्म करवेसु फलाना पुण्य मिले है। जैसे कि कुआं खुदवाओ तो वास्तु अपने को जो पुण्य मिले है वो अपन को वो पुण्य संचय होके फिर वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होवे। कोई ने धर्मशाला बनवाई वगैरह, ये सारे कर्म मार्ग के अंतर्गत आवे हैं। यज्ञ कर्म वगैरह ये सब भी है ही। तो ये सब जिनको इन सब में आसक्ति हो जाए है वो क्या करे हैं, कर्मसु श्रद्धान्विता कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णशः। यानी वो सारे अप्रतिषिद्ध यानी कि जाको निषेध नहीं किए गए है वेद में, वो मतलब वर्ड टू वर्ड जैसे वेद में कहा गया है वैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे को वैसो वो पालन करें, और वो पालन करके वो कृष्णशः। फिर क्या कह रहे हैं, रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो अजितेन्द्रिया। वो ऐसे वो कैसे हुए हैं, उनने कोई इंद्रियन पे जीत प्राप्त नहीं कर ली होगा, उनको इंद्रियन में आसक्ति है अपनी, और उनको रजोगुण जो है वासु उनको मन भी कुंठित हो चुको है कि नहीं फलानो काम करो तू फलानो मिलेगो फल। तो कामात्मानो मतलब कामात्मा है, वो काम अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो कर्म कर रहे हैं। पितृन यजन्ति अनुदिनम गृहेषु अभिरताशय, तो पितृन को यजन करे हैं और अनुदिनम यानी नित्य गृहेषु अभिरताशय, उनकी घर में आसक्ति है, गृह संसार आदि में आसक्ति है। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः, मतलब उनकी बुद्धि भगवान में लगी भाई नहीं है, वो विमुख है उनसे, भगवान से उनकी बुद्धि विमुख है। कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः नूनम दैवेन विहिता ये च अच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्ति असद गाथा पुरुषमिव विद्भुज। वो मुख्य जो भगवान की कथा को रस है वातु वो विमुख रहे हैं और वो याई में लगे रहे हैं, कर्म मार्ग में ही कर्म के हमें चक्कर में पड़े रहे हैं। तो यहाँ पे कर्म मार्ग की निंदा की गई है। तो वो यहाँ कर्म मार्ग को विफलता बता रहे हैं कि कर्म मार्ग आपको केवल वह कर्म के लिए जो मतलब क्या फिक्स्ड जो वो फल है वो दिलावा है। वो भक्ति मार्ग में जो प्रकार को सुख है सदानंद की प्राप्ति वो नहीं करावे है। और फिर ये भगवत गीता को श्लोक है, यदक्षरम वेद विदो वदंती, वो देखिए तो ये देखो, यदक्षरम वेद विदो वदंती
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यानी वेद वेदता लोग जिसकी अक्षर कहते हैं, जाको अक्षर ऐसे कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म जाको जाने हैं, वेद विदो वदंती विशन्ति यद्यतयो वीतरागा, यानी जो जिनकी वो वहां में प्रवेश करे हैं, जो मतलब बाद में जो ज्ञान, यानी यहाँ पे ज्ञान की बात है, वेद को जानना यानी क्या, ज्ञान की प्राप्ति करनी। तो वो ज्ञान की प्राप्ति करके कहाँ प्रवेश करे हैं, विशन्ति यद्यतयो वीतरागा, उनको संसार में से आसक्ति तो हट जाए है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, यूं कह के वहां ज्ञान मार्ग की वो बता रहे हैं। ठाकुर जी अर्जुन को ज्ञान मार्ग को उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे ये कह के। पर वो ज्ञान मार्ग भी क्या हो गए है, वो अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंचावे है। और फिर तीसरा है उपासना मार्ग, है ना, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग भी वो अक्षर ब्रह्म तक पहुंचावे है, जो कि कृपानंद तो नहीं दिलाए को। और वहां के बाद रह जावे है उपासना मार्ग, यानी पूजा इत्यादि करना, पूजा करना, अर्चन करना वगैरह। तो वाके लिए भी कह रहे हैं यहाँ पे पूजादिना ब्रह्म लोकम। ये है, ये देखो, ये उपासना मार्ग की कमी बता रहे हैं कि पूजादिना ब्रह्म लोकम त्रिभिर मत्साम्यतामियात मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम स लभते एवं यह पूजयेत माम। यहाँ पे पूजा मार्ग को उपदेश वहां पे दे रहे हैं उद्धव जी को, ठाकुर जी। ये एकादश स्कंद को वाक्य है। और वहां में ठाकुर जी उद्धव जी को या तो पूजा मार्ग को, उपासना मार्ग को उपदेश दे रहे हैं। वह उपासना मार्ग के बाद भी निरपेक्षण, मतलब कोई अपेक्षा रहित होके अगर पूजा करे, वहां पे भी अगर पूजा कोई अपेक्षा के साथ करेगा तो फिर वो उपासना मार्ग से भी हट जाएगा। वो फिर वापिस वो कर्म मार्ग भी, वो पूजा भी कर्म मार्ग ही बन जाएगी अगर अपेक्षा के साथ करेगा। तो निरपेक्ष होके अगर जो मामेव निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, जो मेरे को ही निरपेक्ष होके भक्ति योग के द्वारा मेरा वंदन करे है, वह भक्ति योगम लभते एवं तो यह पूजयेत। तो या प्रकार से अगर कोई मेरी पूजा करे वो, तो वाकु भक्ति योग की प्राप्ति होगी। वहां पे भी सर्वानंद को, कृपानंद की प्राप्ति तो नहीं ही होगी। हाँ, बहुत से बहुत वाकु भक्ति योग की प्राप्ति हो जाएगी, यानी भक्ति वाकु प्राप्त हो जाएगी। अब फिर वो भक्ति के द्वारा वो कभी कृपा ठाकुर जी को प्राप्त करे तो मतलब वो पुष्टि में अगर पहुंचे तो जाके वाकु फिर ठाकुर जी को कृपानंद की प्राप्ति हो सके है। तो वही कहें कि इन सब वाक्यांशु, मतलब इन सब से ये पता चले है कि सर्व कर्म ज्ञानोपासनादिकम परित्यज्य सवासनम त्यक्त्वा निरुद्धैर भगवता स्वीयत्वेन वृतैः। मतलब जिनको भगवान ने वर्ण किया है स्वीयत्व के रूप में कि ये मेरे अपने हैं, ऐसे जो भक्त हैं, निरुद्ध हैं, उनको कर्म, ज्ञान और उपासना आदि को सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। उनको सवासन त्याग कर देना। सवासन को मतलब है कोई वासना सहित सबको त्याग कर, मतलब वासना भी त्याग कर देनी है कि मुझको यहाँ के द्वारा ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये तरह की जो वासनाएं हैं उन सबको भी त्याग करके त्यक्त्वा निरुद्धैर भगवता स्वीयत्वेन वृतैः, यानी कि जिनको, मतलब कौन को ऐसे त्याग करना चाहिए, जिनको भगवान ने स्वीयत्व को वर्ण किया है, उनको ये सबको त्याग कर देना चाहिए। अतएव किंचित विस्तृत प्रपंच। अब आपको वो उपपत्ति बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे आपको, मतलब उदाहरण बता रहे हैं, टेस्टिमनी बता रहे हैं कि किंचित विस्तृत प्रपंच, कुछ जिनने ठाकुर जी को लिए प्रपंच को विस्मरण कर दियो है, तदर्थम साधनानि विदधत भी, और भगवद अर्थ वो साधन भी कर रहे हैं। ऐसे सर्वदा निरंतर जो सर्वम मद्भक्ति योगेन इति वाक्यात् सर्वम ददाति इति, सर्वदा
सर्वेष्ट दातारो गुणा एव गेया इत्यर्थ। यानी यहाँ पे एक और वो दे रहे हैं टेस्टिमनी, जहाँ ये बता रहे हैं कि देखो ठाकुर जी ने कहा आज्ञा करी कि यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम यथा कथनचित यदि वांछति। यहाँ ठाकुर जी यूँ आज्ञा कर रहे हैं कि मतलब ये 11वें स्कंद को 20वें अध्याय में 32-33वां श्लोक है, जहाँ में यूँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो कर्म के द्वारा मिले, जो तप के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं, योग के द्वारा या दान धर्म के द्वारा या अन्य श्रेय यानी जो आत्म कल्याण के लिए जो जो कार्य बताए गए हैं शास्त्र में, उनके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं वो सब मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते, मेरे में भक्ति योग के द्वारा जो भक्त है वो मेरो भक्त जो है वो सबको प्राप्त कर ले हुए हैं। बाकी फिर ये ज्ञान तप यज्ञ कर्म वगैरह कछु भी करने की जरूरत नहीं है। उन सब मार्गन के द्वारा जो भी मिले है इतनो प्रयत्न कर करके बाकी जो प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे भक्ति योग के द्वारा मेरे भक्त तो अंजसा यानी बहुत इजीली, बाकी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े, बाकी मतलब बहुत ही सरलता से बाकी ये सारी चीजें प्राप्त हो जाए। स्वर्गापवर्गम मद्धामा कथनचित यदि वांछति, यानी अगर वो स्वर्ग और अपवर्ग मतलब अपवर्ग मतलब मोक्ष, स्वर्ग मोक्ष आदि मतलब मेरे धाम में स्थान प्राप्त करनो, ये सब भी यदि वो इच्छा करे तो वो सब भी वाकु मिली से, ये सारे सेकेंडरी हैं, जो भी फल हैं ये सारे सेकेंडरी फल हैं। तो इन सब के द्वारा जो प्राप्त हो गए हैं वो सब चीजें मेरे भक्ति योग से को अपने आप ही प्राप्त हो जाएं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वदा निरंतरम सर्वम भक्ति योगे नीति वाक्य सर्वम ददाति। तो ठाकुर जी सब कुछ देवे ही है भक्ति योग में ही। इति सर्वदा सर्वेष्ट दाता, भगवान कैसे हैं? सर्वेष्ट दाता है, सब इच्छित वस्तु के दाता हैं। तो उनके गुण को ही सदा गाना चाहिए, ये कहने को तात्पर्य कि तुम क्यों कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में और उपासना मार्ग में इन सब में तुम दौड़ रहे हो, ताकि बजाय तुम केवल यही में रहो, भक्ति योग में, भक्ति में रहो और भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लो अपने आप ही। कोई तरह की तुम प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी अपने सब कुछ देवे के लिए तैयार ही विराज रहे। अच्छा, अब एक शंका दूसरी उठा रहे हैं कि ननु वेद मार्गानुसारेण इति वाक्यात् तथा भजने क्रियमाणे तन्मार्गस्य व्याख्यातृभिर अन्यथा कृतत्वात् कम पक्षम अवलंब्य गुणान गायेत इत्याशंक्य। अब एक शंका ये उठा रहे कि भाई आप कह रहे हो कि वेद मार्ग का अनुसरण करो, वेद में भक्ति वगैरह करने की कही गई है, तो वो अगर वेद मार्ग का अनुसरण करें तो भजन करने हैं, तो फिर वेद मार्ग के व्याख्याता अलग अलग प्रकार के हैं। वेद मार्ग ऐसे तो समझ में आवे नहीं, तुम ऐसे उठा के वेद पढ़वे लग जाओ तो तुमको समझ में आएगा नहीं, तो वाके लिए तुमको कोई गुरु के पास जाना पड़ेगा। और वेद मार्ग के व्याख्याता अनेक प्रकार के हैं, अनेक तरह के संप्रदाय हैं, अनेक तरह के गुरु हैं। तो इन सब गुरुओं के, इन सब संप्रदायों के द्वारा को इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग तरह से है। वेद मार्ग एक है, वेद एक है, पर वाको इंटरप्रिटेशन अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग गुरु अलग अलग प्रकार से देव हैं। तो वह इंटरप्रिटेशन के में आदमी कंफ्यूज हो जाए है जी। तो वाकु ये हो कि कम पक्षम अवलंब्य गुणान गाये, वेद मार्ग के अनुसार अगर गुणगान करना है तो कौन से पक्ष को अवलंबन करना, कौन से संप्रदाय को अवलंबन करना और
कौन से संप्रदाय को अवलंबन करके वाक्य अनुसार गुणगान करना, ऐसा अगर प्रश्न है तो वाक्य लिए उत्तर में यह श्लोक के अंदर जो शब्द है सदानंद परैर्गेया सच्चिदानंदता ततः के सदानंद परैहि थी, सदानंद साकारानंद में, मतलब सदानंद कौन, साकार है जो जो आनंदमय है। तो वो कौन है आनंदमय, परह परमात्मा परमकाष्ठापन्नो, और वो पर जो है जो परमात्मा है वो परमकाष्ठापन्न है, यानी सबसे ऊपर सुपर सबसे ज्यादा, मतलब पराकाष्ठा है, उनके ऊपर और कोई नहीं है, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम तक जो पहुंचावे मतलब ऐसे जो साकार आनंद रूप हैं उनको भजन करना चाहिए, उनको गुणगान करना चाहिए। न तू पुच्छादि भावापन्नो येषाम तादृशैः इत्यर्थः, मतलब जो सदानंद पर हैं ऐसे के द्वारा जो गुणगान किए गयो है, मतलब तुम ये पूछ रहे हो ना कि कौन से गुरु, कौन से व्याख्याता को हम सुने और उनके अनुसार हम गुणगान करें, तो ऐसे गुरु जो सदानंद पर हों, जैसे आचार्य चरण ने बात कही है ना कि कृष्ण सेवा परम वीक्षा दम्बादि रहितन नरम, तो ऐसे जो कृष्ण सेवा में जो कृष्ण सदानंद है, तो इनके द्वारा जो गुणगान है, ऐसे जो गुरु हैं, जो ऐसे जो संप्रदाय हैं जो सदानंद पर हैं, जो कृष्ण पर हैं, उनके भाव आपन्न होय के ठाकुर जी को गुणगान करना, न तू पुच्छादि भावापन्नो तेषाम तादृश। यहाँ पे मायावाद के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं हरिराय जी के मायावादी को वो अवलंबन करके उनके फिर जो गुणगान तुम उनके हिसाब से करोगे तो वो तो तुमको ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तक ही पहुंचाएगा। और पुच्छादि भावापन्नो जो शब्द कहिए ना, ये अपने को ले जा रहे है या मैं अपने जो है तैत्रीय उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली है, वह ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर अब ये अपने को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। उपनिषद है, आप लोग जरा ध्यान से सुनियो क्योंकि ये थोड़ा विषय थोड़ा गंभीर है, तो या को अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ब्रह्मानंद वल्ली तैत्रीय उपनिषद की ये है प्रथम वल्ली जो है वो तो वो है क्या कहेंगे कुछ तो अनुवाद, हाँ सबसे पहले शिक्षावल्ली है, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो एक तो शिक्षावल्ली है, उसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली है, दूसरा चैप्टर है वह। तो वह दूसरे चैप्टर में क्या बताया है वो अपन देखो। तो वहां में सबसे पहले ये जो शब्द है अपन ने वाक्य कई बार सुनो होगा, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, या मैं भी अपन के निरोध लक्षण के अध्ययन में भी ये शब्द आया है, ये वाक्य आया है, ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता, यानी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को बताने के लिए आगे आने वाली श्रुति कही गई है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सर्वतः ब्रह्मणा विपश्चिताति। ये जो श्रुति है वो यूं कह रहे हैं कि इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्ति के स्थान का वर्णन करते हुए उनकी प्राप्ति का फल बताया जाता है। भाव यह है कि वो परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। सत्य शब्द यहाँ नित्य सत्ता का बोधक है, सत्य यानी नित्य सत्ता जो सदा है,
हमेशा है, आपको कभी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं है तो अब है या फ्यूचर में होगो, ऐसे नहीं, सदा है, पहले भी तो, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वाकु कहें सत्य, तो वो सत्ता को बोधक है, अर्थात वे परब्रह्म नित्य सत्य हैं, किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें अज्ञान का लेश भी नहीं है और वे अनंत हैं, अर्थात देश और काल की सीमा से अतीत, सीमा रहित हैं। वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी सबके हृदय की गुफा में छिपे हुए हैं, जो अंतर्यामी रूप से जो छिपे भय हैं जीव मात्र के अंदर, वो परम ब्रह्म। तो वो उन परम ब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है, वो सबकी भली भांति जानने वाला उन ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के बोधों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। ये बात अगर आप देखो तो ये नित्य लीला की बात ही कर रहे हैं, जो आचार्य चरण बता रहे हैं कि नित्य लीला में प्रवेश हो के वहां क्या करे, सह ब्रह्मणा विपश्चिता सो अश्नुते सर्वान कामान, सर्व कामों को भोग करे है, जो मतलब अलौकिक कामों को। हाँ, यहाँ साधारण ये लौकिक काम की बात नहीं हो रही है, अलौकिक काम की बात हो रही है। तो वो ब्रह्म के संग रह के वो सब कामों को भोग करे, जो ये गुहा में रहे हुए ब्रह्म को पहचान ले है, जो आपको जान ले है वो। अब इतनी बात कह के अब कैसे मनुष्य शरीर बने, मतलब जीव के 3 रूप हुए हैं, एक तो ब्रह्म के अंश को रूप है, और एक है सूक्ष्म शरीर, और एक है स्थूल शरीर। तो वाकु ऐसे है, इनने या ब्रह्मानंद वल्ली में वाकु डीप में ले गए हैं। पहले स्थूल शरीर कैसे बनो, वाके अंदर प्राण है, वाके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वाके अंदर एक आत्मा है, और वाके अंदर परमात्मा है। ऐसे वो 5 कोश बताए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो वह आनंदमय तक पहुंचना है, तो वाके लिए पहले अन्नमय को पहचानो, ये स्थूल शरीर क्या है ये पहचानो। तो वो बता रहे हैं कि तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाश संभूत, वो जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म सु पहले आकाश संभूत है, पहले आकाश उत्पन्न भयो, आकाशाद वायु, आकाश सु वायु उत्पन्न भई, वायु और अग्नि, वायु सु फिर अग्नि उत्पन्न भई, अग्निरापह, अग्नि सु फिर जल उत्पन्न भया, आपह मतलब जल, और अभ्य पृथ्वी, जल सु पृथ्वी उत्पन्न भई, पृथ्व्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, पृथ्वीसु औषधि उत्पन्न भई, और औषधि सु अन्न उत्पन्न भय, अन्नात् पुरुषः, वह अन्न सु रज और वीर्य उत्पन्न भय, और वासु पुरुष उत्पन्न भय, यानी वो देह उत्पन्न भय। सवा एष पुरुषो अन्न रसमय, वो ये पुरुष जो मनुष्य देह है वो अन्न रसमय है, अन्नमय है, रसमय है। तस्य इदमेव शिरा, ये जो दिख रहा है वो या तो सिर है, मतलब एक पक्षी की उपमा दी है, मनुष्य शरीर को एक पक्षी की उपमा दी है, स्वामी जो पक्षी का सिर है वो तस्य इदमेव शिरः अयम दक्षिण पक्ष, ये वाको दक्षिण पक्ष है, यानी कि दाहिनो हाथ, मानो कि वह पक्षी को दाहिनो पंख है। अयम उत्तर पक्ष, ये तरफ जो है बायों हाथ वो बायों पंख है। अयम आत्मा, यानी वाको जो मुख्य अंग है वो आत्मा है। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति, यानी ये जो पुच्छ है या कि जो पूंछ है वो मतलब जो दोनों पैर हैं वो ही, बाकी पूंछ है, प्रतिष्ठा है। और अन्न की महिमा के विषय में ये आगे कहो, यानी वो जो स्थूल शरीर है, पहले वो स्थूल शरीर को तुम जानो, वह स्थूल शरीर को जान लेने के बाद में मतलब ये या वाको ब्रह्म को अपने को बोध करावे के लिए
पहले स्थूल शरीर को ले जा रहे हैं अंदर, क्योंकि अपने को दिखाई तो स्थूल शरीर दे रहे हैं ना पहले, तो स्थूल शरीर को पहले जानो कि वो क्या है, उसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय अनुवाक में बता रहे हैं अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वी श्रिता अथो अन्येनैव जीवन्ति अथेन प्रति यत्न यन्त्य अंततः अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम। मतलब ये अन्नमय शरीर है, तो वो अन्न, ये वासु प्रजा उत्पन्न हो गए है, जो पृथ्वी जिसके ऊपर आश्रित है वो अथो अन्य नहीं वह जीवन थी, अन्न तो ही जीवन है। अन्य अथ एनदपि अंत्य यंति अंततः, यही के लिए सब लोग प्रयत्न करे हैं। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, भूत यानी कि पृथ्वी में जो उत्पन्न हुए उनमें ज्येष्ठ नाम सबसे पहले अन्न भयो। तस्मात् सर्वौषधयम उच्यते, अन्न तो ही सब औषधियां बने हैं। सर्वम ते अन्नम आपनुवन्ति ये अन्नम ब्रह्मोपासते, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्न तो सब जो भूत हैं, यानी कि भूत यानी जो जन्म लेवे हैं वो सब उत्पन्न हुए हैं अन्न के कारण ही। जाता अन्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अस्ति च भूतानि, अन्न को ही खावे हैं और वायु वर्धन हुए हैं। तस्माद अन्नम तदुच्यते, तो वो अन्नमय यैसु कहलावे है। अब वो फिर आगे कह रहे हैं तस्माद वा एतस्माद अन्न रसमयो मया धन्यो अंतर आत्मा प्राणमय। तो वह अन्नमय शरीर के अंदर प्राण आवे तब तो वो हलन चलन करेगा, तो वो प्राणमय है। तेने वो पूर्ण, वो प्राण कहाँ से आवे है, वाकई सूक्ष्म शरीर के कारण, तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो प्राणमय है। सवा ऐसे पुरुष विधेय तस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विदः तस्य प्राण एव शिर। वाक को भी सूक्ष्म शरीर को भी एक पक्षी की उपमा दी गई, तो वो पक्षी कैसे हो, तो प्राण वाका सिर है, और पंच प्राण हुए ना, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये पंच प्राण कहलावे शरीर के अंदर। तो वाकु विभक्त कर रहे हैं पक्षी के शरीर में, तो प्राण एवं शिर, वाकु प्राण जो है मतलब प्राण अपान व्यान उदान और समान, यानी प्राण मुख्य है तो वो शिर है वह पक्षी को। व्यान दक्षिण पक्ष है, दक्षिण पंख है। अपान उत्तर पक्ष है। आकाश आत्मा है। पृथ्वी पुच्छ है। तदप्येष श्लोको भवति। तो वो बता रहे हैं कि व्यान दक्षिण पंख है, अपान बाया पंख है, आकाश अर्थात आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। तो वो प्राण होंगे तो शरीर पुष्ट होगा ना, प्राण निकल जाएंगे तो शरीर बेकार है। तो वो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरे शरीर में, पूरे स्थूल शरीर में व्याप्त होकर है वायु की तरह। तो ऐसे यहाँ पे वो प्राणमय की उपमा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आज अपन यहाँ रखें अन्नमय प्राणमय, ताकि बाद और आगे अपन मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय तक पहुंचना अपने को वो बता रहे हैं, तो वो अपन देखेंगे। और मुख्य ये बात समझो कि या के अंदर जो आनंदमय ब्रह्म की बात कही गई है, वाकु सही ढंग से जो पहचाने हैं, वा संप्रदाय को आश्रय लेके और वा संप्रदाय के अनुसार गुणगान गुरु के द्वारा जैसे समझाया गया है, वाक्य बताए अनुसार जब अपन गुणगान करेंगे तब जाके ये कृपानंद की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य ये है। पर अपने को ये उपनिषद को जो है वो अपन समझें तो अपने को व्यवस्थित अपने को आनंद प्राप्त होगा, सही ढंग से अपने को समझ में आएगा। ये बात है कहने की। अपन यहाँ पे रखें
तो अब अपन मैं कहूँगा कि आप लोग सबको अनम्यूट कर दो और जिनको कुछ प्रश्न आदि पूछने हो तो वो पूछ सके मेरे से। सवा 10 तो हो चुके हैं मतलब मेरे को। हाँ निकुंज भाई अथवा भाविक भाई जो भी हैं वो अनम्यूट करें सबन को, और कोई को प्रश्न करने हो तो हाँ हैंड रेस करें। है कोई प्रश्नकर्ता? जाग रहे हैं कि सब सो गए? कौन हंस रहा है? लगता है सब सो गए हैं। दंडवत प्रणाम जे बिरवा बोलू છું। હા બિરવાબેન બોલો। જે આપે જે સમજાયું ને જ્ઞાન માર્ગ ને ભક્તિ માર્ગ ને કર્મ માર્ગ બરાબર, તો આપણે જ્યારે ભક્તિ જ્ઞાન માર્ગ ઉપાસના એટલે કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ અને ઉપાસના માર્ગ અને જે હા તો આપણે જ્યારે ભક્તિ માર્ગને ફોલો કરીએ છીએ તો ઠાકોરજી આપણને પહેલા આ બધું શીખવાડે છે કે આ બધા કરતા પણ બી આપણે ઉપર છે ભક્તિ માર્ગમાં, અને દેન વી હેવ ટુ ફોલો ભક્તિ માર્ગ, રાઈટ? જે છે એટલે આપણે આ સમજવાનું થોડુંક પહેલા અને પછી આપણે ભક્તિ માર્ગને ફોલો કરવાનું। એની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ આપણે જો શ્રદ્ધા ઠાકોરજીની ઉપર, હવે જેમ તમે આ જોઈ લો ને કે વ્રજના ભક્તો વ્રજ ભક્તોએ તો કઈ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, કઈ શાસ્ત્ર કે કર્મ માર્ગ કે જ્ઞાન માર્ગ કે ઉપાસના માર્ગ વગેરેનો એટલે સમજવાનો પણ પ્રયત્ન નહોતો કર્યો, પણ ઠાકોરજીએ ત્યાં તો ઠાકોરજીએ પ્રમેય બલ દ્વારા જ એમને પોતાનામાં આસક્ત કરી લીધા, નિવૃત્ત કરી લીધા। એમને કઈ જરૂર પડી નથી ત્યાં, એમને કરવાનું કેવલ એટલું જ હતું કે ઠાકોરજી પર આશ્રિત છે। ઠાકોરજી કીધું કે આજ્ઞા કરી કે તમે ઇન્દ્રનો યાગ બંધ કરો તો ઠીક છે, ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી એટલે એમણે ઇન્દ્ર યાગ બંધ કર્યું અને ગોવર્ધન યાગ કર્યું। ઠાકોરજીએ આજ્ઞા કરી ગોવર્ધન યાગ કરો તો એમણે એ કર્યું, એટલે ટોટલ સરેન્ડર એમને ભાવ રહ્યો હતો। એટલે એ જ આપણે કરવાનું છે, બાકી કર્મ માર્ગ જ્ઞાન માર્ગ ઉપાસના માર્ગ સમજવાની આપણને કઈ જરૂર છે ને નથી ને, એટલું સમજી લઈએ કે બસ। હા એવું એક વૈષ્ણવ સાથે વાત કરી ને એવું કે આપણે છે ને પહેલા તો કૃષ્ણને સમજવું જોઈએ કે બ્રહ્મ છે, એટલે પણ મને બહુ કૃષ્ણ બ્રહ્મ છે એ આપણને ખબર છે બરાબર છે, પણ એ કે આપણે પહેલા કૃષ્ણનું આવું બ્રહ્મ સ્વરૂપ સમજવાનું ને પછી આપણે ભક્તિ માર્ગ ફોલો કરીએ તો આપણને ખબર પડે, પણ પછી જે એ તો બહુ અઘરું લાગે। એટલા માટે કે મહાત્મ જ્ઞાન પૂર્વસ્તુ સુદૃઢ સર્વતો અધિક સ્નેહો ભક્તિ એમ કહ્યું છે ને, એના સંદર્ભમાં એ કહેતા હશે કે થોડુંક આપણને મહાત્મ જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ। આપણે બ્લાઇન્ડલી તો કોઈને એમને ફોલો ન કરીએ ને, થોડુંક એટલું તો જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે આપણે કોની ભક્તિ કરવા જઈ રહ્યા, એટલીસ્ટ ફોર ધેટ મેટર એટલા માટે તમને મહાત્મ જ્ઞાન તો જરૂરી છે, કારણ કે મહાત્મ જ્ઞાન જો નહીં હશે ને તો તમારાથી ભૂલ પણ થઈ શકે છે કે આપણાથી કંઈક અપરાધ પણ થઈ શકે। જો આપણે એમ ન સમજીએ કે કૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે, કૃષ્ણ આપણો સખા છે કે આપણો દીકરો છે, એવી રીતે માનીને ચાલીએ તો આપણાથી અપરાધ પણ થઈ જાય, બરાબર, તો ભક્તિમાં આપણાથી ભૂલ થઈ શકે છે। એટલે મહાત્મ જ્ઞાન એટલા પૂરતું આવશ્યક છે, પણ સાથે સાથે સુદૃઢ સર્વતો અધિક સ્નેહ એ જ મુખ્ય છે। એટલે સુદૃઢ સર્વતો અધિક સ્નેહ તો પહેલા હોવું જ જોઈએ, એની સાથે મહાત્મ જ્ઞાન જોઈએ, સમજે ને? બરાબર છે, બરાબર, બહુ સરસ સમજાવ્યું છે આપે। ચાલો બીજા કોઈ? નિકુંજ? હા નિકુંજ। જે હવે મને ગ્રંથનું નામ નથી યાદ આવી રહેલું, બટ એ ગ્રંથ આપના થકી જે છે એમાં એવું હતું કે દરેક મનુષ્યનો જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે એ જન્મ
થતા કે ઇવન થવાની પહેલા જ એનો માર્ગ એ પ્રીડિસાઇડેડ જ હોય છે. એટલે એઝ અ વૈષ્ણવ જન્મ પુષ્ટિ માર્ગમાં થયો તો ઠાકોરજીએ ઇવન બિફોર એનીથિંગ હેઝ કમ અપ પહેલાથી આ માર્ગ પ્રિફિક્સ કરીને આપી દીધેલો છે કે આ માર્ગ એ તારો માર્ગ છે. તો પછી એને એના પછી હવે અહીંયાનું સ્ટેટમેન્ટ કે જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગ છે તો બાકીના માર્ગ આર આઈ વોન્ટ સે ઇન્ફિરિયર બટ એ મારાથી લગતા નથી. તો પછી નોટ કન્સર્ન. પણ જો જ્યારે શરૂઆતથી જ એકદમ ઉચ્ચ કક્ષામાં જો મૂકી દીધેલા છે તો બાકીનાની જાણકારી લઈને એના ઉપર શંકા થાય કે એનામાંથી માર્ગના અનુસરણમાં પણ એક પ્રકારનું અલગ રીતના આવી શકે છે ને. કારણ કે there always would be a conflict કે કર્મ માર્ગ એક વસ્તુ કે છે, મે બી ઉપાસના માર્ગ બીજું કઈ કહેતું હશે અને પુષ્ટિ માર્ગ કઈ અલગ કહેતું હશે. and there is always a conflict of rights and wrong. તો પછી why are we deliberately creating that conflict? એટલે તમારો પ્રશ્ન થોડો કન્ફ્યુઝિંગ છે. what exactly you want to ask? I'm not able to understand. Okay, જે સૌથી ઉચ્ચ કક્ષામાં જો મૂકી દીધેલા છે તો પછી કેમ નીચે કેમ આવવાનું આપણે? મારે મેઇન એ આપણને ખબર we are in dark. આપણે આપણું વરણ પુષ્ટિ માર્ગમાં થયેલું છે એ આપણને જન્મની સાથે તો ખબર નથી છે કે નહીં? we are in dark. તો આપણને આ ખબર ક્યારે પડે? એ ઇન્ટ્યુશન જયારે હવે જેમ કે આચાર્ય ચરણોની વાર્તા જે આપણે વાંચીએ 212 વૈષ્ણવની કે 84 વૈષ્ણવની વાર્તા, તો જ્યાં સુધી આચાર્ય ચરણો કે ગુસાઈજી નથી મળતા તે વૈષ્ણવને ત્યાં સુધી એમને કઈ ખબર હોતી નથી. એટલે થોડુંક એટલે એમને બીજે માર્ગમાં ક્યાંય એમને ચેન પડતું નથી. પણ એમને એ પણ સમજમાં નથી આવતી કે અમે શાના માટે બનેલા છીએ. પણ જયારે આચાર્ય ચરણોના દર્શન થયા, ગુસાઈજીના દર્શન થયા, ત્યારે એમને સ્ફુર્યું કે અરે અમારે આમની શરણે જવું જોઈએ. તો એ વસ્તુ ક્યારે થાય? એટલે શરૂઆતમાં તો આપણને એ ખબર નથી, તો કન્ફ્યુઝન તો રહેવાનું. એટલે ત્યારે માણસ આમ તેમ બધી જગ્યાએ ટ્રાયલ એન્ડ એરર બેસિસ પર કરતો જ રહેશે. પણ એ ઠાકોરજી ઓફકોર્સ પહેલેથી વિચારી રાખ્યું છે કે આને પુષ્ટિ માર્ગમાં જ લાવવું છે. પણ એને એની સમજ ક્યારે આવે? જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ ઠાકોરજી ઉભી કરે ત્યારે જ ને. એટલે એની પહેલાની, સમયની પહેલા નહીં. સમય પણ નક્કી છે કે ક્યારે આવશે. એવી રીતે એ નક્કી છે કે આ માર્ગમાં જ માટે બનેલો છે, પણ એ ક્યારે એ માર્ગમાં આવે છે એ સમય પણ નક્કી છે પહેલાથી. પણ જ્યાં સુધી એ સમય નથી આવતો ત્યાર સુધી એને આ બધા માર્ગોના એટલે એ ભટક્યા કરે છે. પછી એને સમજમાં આવે છે કે અરે હું ખોટો ભટકી રહ્યો હતો. પણ આ પણ ઠાકોરજીએ જ એને આ રીતે રાખેલો છે, તો એને એની કિંમત સમજાય. I don't know if I'm able to clear your doubt. નહીં ખબર પડી. હું એકચ્યુઅલી આપે વખતે એમાં એમ કીધું એક માર્ગ અહમ બ્રહ્માસ્મિ નો આવ્યો જે એક રીતની વસ્તુ ફોલો થઈ ગઈ. એક કર્મકાંડમાં આવ્યો જે ઋષિ મુનિમાં થયા. અને પછીના એમાં એક્ઝામ્પલમાં પણ આઈ થિંક સો જે પ્રહલાદજીનું એક્ઝામ્પલ હતું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં નતા અને એનું કોરિલેશન નું હતું એ રીતના. સો આઈ વોઝ હાજી. એટલે નક્કી છે એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ એ જ્યાર સુધી જીવને સમય નથી આવતો ત્યાર સુધી એ ભટક્યા જ કરે છે. ઠીક છે, થયું છે. ચાલો, અન્ય કોઈ? હા, નિહારભાઈ બોલો. હા જજે, આપના ચરણોમાં કોટાનો કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ છે. હા, આશીર્વાદ છે નિહારભાઈ, બોલો. જજે, ગોપીજનો ઠાકોરજી અંતર્ધ્યાન થયા અને ગોપીજનોને જે દીનતા અને નિસાધનતા પ્રગટ થઈ એ ઠાકોરજીએ પોતાના પ્રમેય બળથી પ્રગટ કરી કે એમના પ્રયત્નોથી થઈ? ગોપીજનોના ઠાકોરજીનો પ્રમેય બળ જ છે. જ્યાં સુધી આ ઠાકોરજી અંતર્ધાન નહીં થાત તો એમને એ થવાનું હતું, તો એ પ્રમેય બળ જ કેવા છે.
જી જય જી એ પણ એક એકબીજાનો પ્રયત્ન નહીં. જ્યારે બધા એમના સાધનો છીનવી લીધા ઠાકોરજીએ, તો આપોઆપ હવે તમે કોઈ પાસેથી બધું જ છીનવી લો તો એ કેવો થઈ જાય, દીન આપોઆપ થઈ જ જાય. બધા રિસોર્સિસ એની પાસેથી લઈ લો તમે તો એ આપોઆપ એની અંદર દીનતા આવી જ જશે. એમાં હવે હું મારી દીનતા લાવું એમ વિચારશે નહીં, એ આપોઆપ આવી જ જશે. જી જી Once you are devoid of all the resources, you automatically become helpless. એમાં તમે વિચારતા નથી કે હવે હું હેલ્પલેસ થાઉં, you become helpless. તો ગોપીજનો પણ નિસ્સાધન થઈ જ ગયા અને એ ઠાકોરજીએ જ કરાવ્યા. જી જય જી ધર્મપત્ની પ્રણામ જય. હા, આશીર્વાદ. યસ, હવે બીજા કોઈ પ્રશ્નો નથી? ऑल डाउट्स क्लियर्ड? ओके, तो फिर अपन आश्रय को पद लेवें. છે કે અહીંયા કોઈ વિજયભાઈ છે કે ચેતના? વિજય છે? હા, વિજય છે? ચલો આશ્રય નું પદ લેવા. હા, આશીર્વાદ વિજય. ચલો આશ્રય નું પદ લેવડાવો. દ્રઢઈ ન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈ ન ચરણન કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગ માંજ અંધેરો. દ્રઢઈ ન ચરણન કે સાધનો નહીં આકલી में, साधन और नहीं आकली में, जासू होयनी में. सूर्य कहाँ कहे द्विविध आंधरो, सूर्य कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरो. द्रढ़ई न चरणन के, द्रढ़ई न चरणन केरो भरोसो, द्रढ़ई न चरणन के. श्री वल्लभाधीश की जय. हाँ, आशीर्वाद. चलो तो अब अपन अगले सप्ताह मिले, अगले शनिवार को. हाँ जी.